we'll start Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form is very important to solve many numerical students, because this law especially talk about force between 2 point charges, okay, and force is a vector quantity, so we must write Coulomb's law in vector form. So let's start. Coulomb's law in vector form. Okay, so now suppose I have one charge here and one more charge here, and distance between both the charges is, suppose for an example, r, and this is suppose charge q1, this is charge q2, and both are positive charge. It means they will repel each other, and product of q1 and q2 is greater than 0. Okay, 0 से ज़्यादा होगा, क्यों? Because both are like charges, and you multiply, you will get greater than 0 number. Even in case of both charges are negative, then also it will be greater than 0, means repulsive force. Okay, means it means one more concept you came to know here, that if the product of two charges is greater than 0, then force between them is repulsive. Multiple choice question में भी आ सकता है. If product of two charges is less than 0, then you will get attractive force. Let me give you an example. Suppose I have 2 Coulomb charge, and one more 2 Coulomb charge, plus 2 Coulomb charge. If you will multiply both the charges, so you will get 4 Coulomb, right? 4 is the positive number, greater than 0. Now suppose one is negative 2 Coulomb, and other is also negative 2 Coulomb, and 2 Coulomb, so you will get 2 2 4, and minus become plus, so you will get 4 Coulomb. Means if both are negative, then also you will get positive number. It means like charges. If you are multiplying like charges, so in this case what will happen? You will get a repulsive force and greater than 0. Okay, and now take an example of 4 Coulomb charge into, for example, minus 2 Coulomb charge. One is positive, one is negative. What you will get? Minus 8 Coulomb. Minus is 8 is what? Negative number. Okay, so here force you will get attractive force. Okay, so one concept is clear, I think. Okay, now we'll talk about vector law. Okay, Coulomb's law in vector form. Let me rub this. Okay, now see student, look at charge q1. This is charge q1 charge. Okay, and this charge will exert force on this charge in this direction, and even this q2 charge will exert force on q1 in this direction. So students, remember, this Coulombian force is central force, and it acts along line joining. Okay, remember, it acts along line joining the two charges. If I connect these two charges, so it will act along line joining. Okay, so one force is here and one force is here. Okay, but they have different direction. Okay, so because of different direction, हम लोग को यहाँ पर उसका जो है notation लिखना पड़ेगा. Okay, so how I can write this force? How I can write this force? So this force can be written as F21. Now why F21? F21, what is its meaning? We are writing Coulomb's law in vector form, so it's very important
to give direction. So how I will write F21 means force on 2 due to 1. Force on charge 2 due to 1. Okay, F21. Similarly, what I can write this as F12. And when we measure the distance, suppose we are writing force on 2 due to 1, F21 when I will write, so I have to give the direction of R also. So R, suppose if we are going from here in this direction, so we become R12, means distance from charge 1 to charge 2. Okay, and similarly in this case, if we will go in this direction, so R will be R21, means distance from charge 2 to charge 1. Now we can easily write Coulomb's law in vector form. we कैसे लिखेंगे, see here. First we'll write F21 is equal to that constant 1 upon 4 pi epsilon naught and multiply both the charges divided by R square. Okay, and direction, what is the direction? F21 R12 cap. Why cap? Because R12 cap is a vector quantity or unit vector. Okay, so unit vector means its magnitude is 1. और अगर आप एक से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा चीज चेंज नहीं होगा. This will not change. Okay, so it means what, students? This is F21. Okay, and similarly we can write F12, force on charge 1 due to 2. So F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into R2 to 1. जब आप ये वाला फोर्स मेजर करोगे F21, so चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ जाओगे ना, so therefore R21. Okay, so this is what R21. Okay, now one more, एक और तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं. मासी, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये वेक्टर क्या होता है. तो 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 में ही शायद यू हैव लर्न चैप्टर नंबर 3 और 4 लॉज ऑफ मोशन दैट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर. तो इस वेक्टर में होता क्या है? तो वेक्टर में बेसिकली एक मैग्नीट्यूड होगा ए का और एक क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताएगा. यही दो चीज होता है वेक्टर में, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड. सो ये जो यूनिट वेक्टर है ए कैप जो लिखा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ये वाला इस साइड लेके जाओ. ओके, तो अभी यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीन्स यूनिट वेक्टर को वेक्टर से और इसका उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग लिख सकते हैं. ओके, सो अभी चलो हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है. ओके, नाउ सी, अगर आप R21 देखो, R21 सपोज मैं इधर सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ. ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सो F21 देखो, F21 क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. F12 भी वही क्वांटिटी है, बस R12 और R21 के यहाँ पर डिफरेंस है. एंड फ्रॉम द डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दैट R12 इज इक्वल टू R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. Q1 से Q2 अगर 4 सेंटीमीटर तो Q2 से Q1 भी 4 सेंटीमीटर ही होगा. ओके, but they have opposite direction, so I can write here minus sign. Okay, so जब ये माइनस साइन आ जाएगा तो ये F12, so F12 स्टूडेंट्स यहाँ पर वेक्टर साइन लिखना बहुत जरूरी. वेक्टर साइन, सॉरी, I have to write vector because force is vector quantity, we are writing Coulomb's line vector form, so vector लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स कटेगा. So here what we can say, let me rub it.
So F12 is equal to minus F21 with vector sign. Okay, so this is what Coulomb's law in vector form. Okay, and so it means what students, ऐसा ऐसा कहीं देखा है, ये चीज कहीं देखा है? Newton's third law. Remember Newton's third law? For every action there is equal and opposite reaction. Okay, it means what? Coulomb's law obey Coulombian force or Coulomb force between two charges. That force obey Newton's third law of motion. So means I can write here Coulombian force actually. Coulombian force obey Newton's third law of motion. Third law of motion. It means what students कि जितना फोर्स चार्ज 1 2 पे डालेगा उतना ही चार्ज 2 1 पे डालेगा. Okay, this is what Coulomb's law. And the Coulombian force acts along line joining, so the Coulombian force is central force. Also Coulombian, ये conclusion है vector. Coulombian force is a central force. Okay, so this is what Coulomb's law in vector form. Now this was all about Coulomb's law in vector form. Now even Coulomb's law have some limitations. So what are that limitations? So first we will understand there are basically three main limitations of Coulomb's law. Number one, let me put the heading, limitations of Coulomb's law. Okay, so first limitation is electric charge must be at rest. Electric charge must be at rest. Okay students, बिकॉज अगर चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी होगा. तो इन दैट केस डिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहेगा अगर चार्ज मूव करता रहेगा. ओके, सो ऑन दैट प्लेस यू कैन नॉट अप्लाई कूलॉम्स लॉ बिकॉज चार्ज रुका होना चाहिए. ओके, एंड नंबर टू electric charge must be point charge. Second limitation, electric charge must be point charge. Point like charge होना चाहिए स्टूडेंट्स. अगर एक्सटेंशन होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बहुत बड़ा होगा तो ऑन दैट प्लेस वी कैन नॉट अप्लाई कूलॉम्स लॉ. ओके, सो बेसिकली सेपरेशन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू size of the charge. Okay, and third and most important, third one, separation between charges must be greater than nuclear size. What? Separation between, suppose दोनों जो चार्ज है, separation between charges must be greater than nuclear size. Nuclear size means nuclear size कितना होता है? 10⁻⁻15 meter. Okay, students, see now we know atomic structure.
एटम में एक न्यूक्लियस होता है, लेट मी मेक वन न्यूक्लियस, सपोज ऐसा एक न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, ओके, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। एक डायग्राम गलत हो गया, जस्ट अ मिनट। ये थोड़ा ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन सी, आ गया कर्सर, हाँ, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन और ये एस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ओके। सो न्यूक्लियस अगर सेंटर पे देखो, सेंटर से चलता हूँ मैं और इसके सरफेस पे आता हूँ, ये 10⁻⁻15 मीटर अप्रॉक्स होता है, ओके। अगर दो चार्जेस बीच में 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस है, ऑन दैट प्लेस न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, कोलम्बियन फोर्स काम नहीं करेगा। कोलम्बियन फोर्स कब काम करेगा? जब दो चार्ज के बीच में सेपरेशन कहाँ रहेगा, कितना रहेगा, न्यूक्लियर साइज ज़्यादा, मतलब 10⁻15 मीटर से ज़्यादा रहेगा, ऑन दैट प्लेस कोलम्बियन फोर्स कम इनटू प्ले, अदरवाइज न्यूक्लियर फोर्स विल वर्क। नाउ अभी आपको ऐसा डाउट आता है सर यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज और दो, तो इन दोनों के बीच में कोलम्बियन फोर्स लगता है क्या? नहीं, बिकॉज उनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो न्यूक्लियर साइज से कम है, ओके। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, कोलम्बियन फोर्स नहीं होते। अगर अब यहाँ पर जो है सपोज एक चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और सपोज ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन और ये वन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कोलम्बियन फोर्स होगा। लेकिन सपोज मैं यहाँ पर कोई हैवी एलिमेंट लेता हूँ जिसमें दो प्रोटॉन है अंदर, तो दोनों प्रोटॉन के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स ही काम करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर अगर वो है तो, अदरवाइज कोलम्बियन फोर्स उसके बाद काम करता है। सो दिस इज द लिमिटेशंस, ओके, ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब ये जो है न्यूक्लियर साइज ज़्यादा रहेगा तो ही काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, ओके। ओके, सो वी कंप्लीटेड कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना। सबसे पहले देखते हैं परमिटिविटी क्या होता है। सो स्टूडेंट, सपोज दो चार्ज है मेरे पास, सपोज ये एक चार्ज Q1 है एंड ये दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस r है, डिस्टेंस r, एंड दोनों सपोज फॉर एन एग्जांपल दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव भी आप ले सकते, इट्स योर चॉइस। अभी ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और वो जो फोर्स होगा, अगर मैं वेक्टरली अगर इग्नोर करूँ मैं, तो सिंपली अगर लिखूँ कूलॉम्स लॉ, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, okay. Now look at this quantity, what is this epsilon naught? Epsilon naught, ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी। और अगर ये एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी फ्री स्पेस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, सपोज ये दो चार्ज को मैंने कहाँ पर रखा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इसको मैंने जो है फ्री स्पेस में रख दिया है इन दोनों के। अब यही अगर दोनों चार्ज को मैं सपोज मैं इसको मैं फ्री स्पेस में रखता हूँ, तो ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट बताएगा कि इतना फोर्स लगेगा। बट स्टूडेंट, अभी जस्ट इमेजिन ये पूरे सिस्टम को मैं किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में रख देता हूँ, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हो गया, ये Q1, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, ये Q1, तो अब ये इन दोनों में लगेगा क्या सेम फोर्स? क्या ऑर्गेनिक लिक्विड में जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, वही जो है फ्री स्पेस में लगेगा? नहीं, दोनों अलग अलग फोर्स लगाएंगे, बिकॉज मीडियम यहाँ पर मैटर करता है। मीडियम जरूरी है, क्योंकि मीडियम, और ये मीडियम कौन डिसाइड करता है? ये एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस। अगर ये फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट, अगर ये किसी और मीडियम में अदर देन फ्री स्पेस, तो हम लोग वहाँ पर सिंपली क्या लिखते हैं, वहाँ पर एप्सिलॉन, सिंपली एप्सिलॉन लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं फिर। सपोज ये दो चार्ज के लिए मैं दोनों सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ इक्वेशन,
ओके। सो पहले वैक्यूम के लिए लिखता हूँ, सो एफ वैक्यूम कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ सपोज अब यही दोनों चार्ज को मैं उठा के किसी और मीडियम में रख देता हूँ, कोई भी मीडियम ले लो आप, कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड ले लो, या फिर कोई भी अदर मीडियम, आप वाटर ले लो। ओके, तो उसके लिए हम लोग अब एप्सिलॉन नॉट लेटर नहीं यूज करेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा, क्योंकि वो दूसरे मीडियम में एप्सिलॉन का वैल्यू अलग होता है। ओके, सो एफ मीडियम, तो चलो लिखता हूँ मैं, तो वही दोनों चार्ज को मैं फिर से दूसरे वाटर में रख रहा हूँ, तो एफ दूसरे मीडियम, सपोज मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ ये इक्वेशन आपका 1 है, सपोज इक्वेशन 2 है, अगर दोनों को कंपेयर करना है सो तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर हम लोग दोनों डिवाइड कर देंगे, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम कर देंगे, तो क्या होगा देखो, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ मीडियम कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सो एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ मीडियम इज इक्वल टू, देखो अभी ये तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा पूरा। देखो ये 1/4 पाई 1/4, ये सब पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसी को जब हम कंपेयर करते हैं वैक्यूम और दूसरी और मीडियम का, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स उस मीडियम का परमिटिविटी कितना है डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको कहते हैं, it can be defined as any medium may be for any medium may be defined as the ratio of force between two charges placed some distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed at the same distance apart in the given medium. Okay, so basically this is what your dielectric constant, dielectric permittivity। और फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। एयर के लिए नियर बाय होता है, k एयर से बाय, k मीन्स दैट दिस कांस्टेंट। ओके, दिस कांस्टेंट 1.00 यस 00054 होता है, मीन्स नियर बाय वैल्यू होता है इसका। एंड के वाटर के लिए ये 80 होते हैं, वाटर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, सो के वाटर ये कितना होता है, 80 होता है, दैट डायरेक्टली कांस्टेंट। ओके, तो आपको जहाँ पे भी न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको ये वैल्यू दिया जाएगा, अगर अदर देन वैक्यूम है तो आपको ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको दिया जाता है। ओके, सो दिस वाज द यू कैन से रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।